यहाँ पे देखो, जब भी हम किसी दूसरी फाइल को अपने करंट जेएसपी पेज में इंक्लूड करना चाहते हैं तो देखो हमें यहाँ पे 3 मैकेनिज्म्स दिए गए हैं, जेएसपी इंक्लूड एक्शन, इंक्लूड डायरेक्टिव एंड जेएसपी प्लगइन। अब तक जो हमने चर्चा की है वो ये पहले 2 की चर्चा की है। जेएसपी इंक्लूड, जेएसपी कॉलन इंक्लूड, वो क्या है, वो जेएसपी एक्शन है। और इंक्लूड डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब उसको यूज करने की सिंटेक्स अलग है, उसके आगे हम @ लगाते हैं, @include, है ना, <% include, ऐसा करके हम उसको यूज करते हैं। तो हाँ, ये इंक्लूड डायरेक्टिव और जेएसपी इंक्लूड एक्शन, ये दोनों ही मैकेनिज्म ऐसा है कि जो किसी और फाइल को आपकी करंट फाइल में इंक्लूड करने को हमें सुविधा उपलब्ध करते हैं। दोनों का डिफरेंस भी अच्छा है कि जो है तो दोनों इंक्लूड करने के लिए, दोनों के नाम में इंक्लूड शब्द भी आता है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में वो कौन बताएगा मुझे? जो बेसिक डिफरेंस केवल एक ही, अदरवाइज बहुत से डिफरेंस है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है जेएसपी इंक्लूड एक्शन और जेएसपी इंक्लूड डायरेक्टिव के बीच में, वो मुझे कौन बताएगा? Who will answer? चलो, अब तो ये 3 या 4 दिन से हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दोनों टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेएसपी इंक्लूड एक्शन एंड इंक्लूड डायरेक्टिव? दिव्या बेन, Yes, sir. व्हाट इज द डिफरेंस? वंदना, वंदना बेन, पल्लवी, બધા છે કે હોયા ગયા છે ખબર નથી પડતી. અરે તો હા કે નહીં બોલતા નથી, ખબર ન હોય તો ના પાડ દે. બધા લેક્ચરમાં એમ જ કરે. બધા લેક્ચરમાં એમ જ હોય સર, કોઈ બોલે જ નહીં કઈ. પણ આન્સર તો આપો તો ખબર પડે ને તમને, શું ખબર પડે છે કે નથી પડતી. આપણે કેદીની આમ લેક્ચર ચલાવવા રાખીએ છીએ, આપણે 35-40 લેક્ચર થઈ ગયા હોય ને તમે કોઈ વસ્તુમાં જવાબ ન આપો તો એનો મતલબ શું? હા સર. તમને ખબર છે દિવ્યાબેન? કાલે ડિફરન્સ મોકલાયા હતા એ તો મેં જોયા હતા. હું એની વાત નથી કરતો, બે હા વચ્ચેનો પણ જે નો ડિફરન્સ સર. છે હા હા. ખબર છે તમને? સર નહીં સર. બેઝિક ડિફરન્સ નથી ખબર? કૃપાલી, જેએસપી ઇન્ક્લુડ ને સર? જેએસપી ઇન્ક્લુડ એક્શન અને ઇન્ક્લુડ ડિરેક્ટિવ. સર ઇન્ક્લુડ ડિરેક્ટિવ એમાં આપણે %% અને ઇન્ક્લુડ ફાઇલથી આપણે એને ડિક્લેર કરીએ, અને ઇન્ક્લુડ એક્શનમાં આપણે @ નથી લગાડતા. એ તો બરાબર છે તમારી વાત, એ ડિફરન્સ છે જ ઓલરેડી, તમે સાચા છો. પણ એ સિન્ટેક્સની બાબતે ડિફરન્સ થયો કે બેને વાપરવાની જે રીત છે, બેને વાપરવા માટે શું લખવું પડે છે, એ ડિફરન્સ થયો.
પણ જે બેઝિક ડિફરન્સ છે કે જે આપણે તરત એક લાઈનમાં કહી દઈએ કોઈને પણ કે ભાઈ બે બે ઇન્ક્લુડ કરે જ છે, બે ઇન્ક્લુડ કરે જ છે, પણ મેઇન તફાવત બેનો આ છે, જેને આપણે બેઝિક તફાવત પણ કહી શકીએ. ઓકે ઓલું એ સર ડિરેક્ટ ઇન્ક્લુડ ડિરેક્ટિવ છે ઈ ખાલી ઓલું શું કહેવાય જેએસપી જ માટે હોય એમ, અને છે ઈ ઓલા રિસોર્સ માટે અને સર્વલેટ અને HTML માટે હોય. એ તમે સારો તફાવત કીધો, બહુ સારું કહેવાય. આ ડિફરન્સ તો આપણે ચર્ચામાં લીધો નથી, પણ ગઈકાલે જે મેં તમને ડિફરન્સ શેર કર્યો ને એમાં એ ડિફરન્સ લખેલો છે, એટલા માટે જ મેં તમને કાલે શેર કર્યું. સારું કહેવાય કે તમે વાંચ્યું, અત્યારે વાંચ્યું કે ગઈકાલે વાંચ્યું ને તમને યાદ હોય. એ તો ડિફરન્સ છે જ, એ બહુ સારું કીધું તમે. મને ગમ્યો તમારો આન્સર કે જે મારે ચર્ચામાં લેવાનો હતો પ્રેક્ટિકલમાં. બહુ સરસ જવાબ છે તમારો, આઈ લાઈક ઇટ. બરાબર, દિવ્યાબેને જે જવાબ આપ્યો એ 100% સાચો છે, આમાં લખ્યું નથી પણ એ ડિફરન્સ છે. એ દિવ્યાબેન નું કહેવાનું શું છે કે જેએસપી ઇન્ક્લુડ એક્શન દ્વારા આપણે HTML, JSP કે કોઈ બીજી સર્વલેટ આ ત્રણેય પ્રકારની ફાઇલ્સને ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ ઇન્ક્લુડ એક્શન દ્વારા, જ્યારે કે ઇન્ક્લુડ ડિરેક્ટિવ દ્વારા ફક્ત HTML અને JSP જ ઇન્ક્લુડ થઈ શકે, સર્વલેટ ઇન્ક્લુડ ન થઈ શકે. બહુ સરસ વાત કીધી તમે. બરાબર, પણ હજી પણ મારો પ્રશ્ન તો એ જ છે કે મૂળભૂત તફાવત શું બે વચ્ચે? બે ઇન્ક્લુડ કરે જ છે, બરાબર, બંને ઇન્ક્લુડ તો કરે જ છે, તો તફાવત ક્યાં આવે છે? ઓમ છે કે વયો ગયો છે? ઓલું કમ્પાઇલ યસ, ટાઈમ બેઝિક ડિફરન્સ શું છે બંને વચ્ચે? ઓલું કમ્પાઇલ ટાઈમ થાય ને સ્ટેટિક થાય ડાયરેક્ટિવ, ને ઓલું રન ટાઈમ થાય ને ડાયનામિક. તારો જવાબ સાચો છે, તારો જવાબ સાચો છે કે જે તે આ પેજમાં વાંચીને કીધું, બરાબર. પણ ઈ જ વસ્તુ તે જે મને ડિફરન્સ કીધો ને એ જ હું માગું છું ક્યારનો, પણ એ જ ડિફરન્સ તે જે કીધો ને પોઈન્ટ, એ પોઈન્ટને આપણે સમજી શકીએ ને એ રીતે કહેવાનું છે. તું શું સમજે એમ હાલ? તમે બધાય શું સમજ્યા? તે જવાબ આપ્યો, તારો જવાબ જે હું એક્સપેક્ટ કરું છું ને એ જ છે. હું જે જવાબ ક્યારનો માગું છું ને બેઝિક ડિફરન્સ એ જ તે આપ્યો છે, તું સાચો છે. પણ એ વસ્તુને આપણે કઈ રીતે સમજીએ? આપણી સાદી ભાષામાં સમજવું હોય તો કોઈને સમજાવવું હોય આપણે તો શું કહીએ એને? એ જ લાઈન, બેઝિક ડિફરન્સ એ જ છે તું કે છે, પણ આપણે કેમ સમજીએ? હાલ તે જે લાઈન કીધી ને તું શું સમજે? તું શું સમજો એમાં? આનંદ, આનંદ બાબુ, हाँ सर. હા, ડિફરન્સ, બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્ક્લુડ ડિરેક્ટિવ એન્ડ ઇન્ક્લુડ એક્શન. રૂપેશ, Sir, directive does not support the parameter includes allowed to pass the parameter by JSP param. और डिफरेंस है, लेकिन मैं बेसिक डिफरेंस की बात कर रहा हूँ. चिंतन, देखो, मैं जो अभी जेएसपी इंक्लूड एक्शन और दूसरी बात जो कर रहा हूं वो इंक्लूड डायरेक्टिव, दोनों करते क्या है? बोथ इंक्लूड
some file or page। इंक्लूड एक्शन जो है ना वो इंक्लूड आउटपुट ऑफ सम अदर पेज दैट इज JSP, HTML और a servlet। इंक्लूड डायरेक्टिव जो है वो includes code of some other page in current page। और ये जो मतलब पेज हो सकते हैं जिसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं वो JSP या HTML ही हो सकते हैं, सर्वलेट उसमें नहीं। दूसरा ये बेसिक डिफरेंस आया समझ में कि इंक्लूड एक्शन से क्या होता है, हमारे पेज के आउटपुट में दूसरे पेज का आउटपुट जुड़ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। मतलब जब क्लाइंट को आउटपुट दिखेगा तो वो हमारे पेज का आउटपुट और जिस पेज को इंक्लूड किया है, जहां पे इंक्लूड किया है वहां पे उस दूसरे पेज का भी आउटपुट वहां पे आ जाएगा। जबकि इंक्लूड डायरेक्टिव से क्या होता है, हमारे पेज के कोड में दूसरे पेज का कोड इंक्लूड होता है, तो है इंक्लूड। लेकिन जो पहला मैकेनिज्म है उसमें केवल कोड अलग अलग रहते हैं, आउटपुट कंबाइन होकर आता है। और जो इंक्लूड डायरेक्टिव है उसमें क्या होता है, कोड मिक्स होकर आउटपुट जनरेट होता है। अगर हमने किसी दो JSP पेज को अपने करंट पेज में इंक्लूड किया है तो हमारे करंट पेज का जो कोड है वो बढ़ जाएगा, लेंथी हो जाएगा, उसमें वो दोनों पेज का कोड भी आ जाएगा और फाइनल जो आउटपुट जाएगा वो इस कंबाइंड कोड का आउटपुट क्लाइंट को मिलेगा। तो यहां पे अगर हम सोचे कि हमारा a.jsp पेज है, ठीक है, और दूसरा पेज है हमारा main.jsp पेज। अब अगर हम इंक्लूड करते हैं, अगर a.jsp को main.jsp में, अगर हम इंक्लूड करते हैं a.jsp को main.jsp में इंक्लूड एक्शन के जरिए, तो क्या होगा, इंटरनली दो सर्वलेट बनेगी। कौन कौन सी, एक a.java और दूसरी main.java, जो भी नाम हो, मैं तो यहाँ केवल नाम लिख रहा हूं, अदरवाइज हमें पता है कि इंटरनली जो नाम बनते हैं वो कैसे होते हैं, a_jsp.java, main_jsp.java। तो ये दोनों ही पेज A और B दोनों, सॉरी A और main दोनों JSP पेज है, तो इंटरनली वो सर्वलेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम A को main.jsp में इंक्लूड एक्शन के जरिए इंक्लूड करते हैं तो दो सर्वलेट्स इंटरनली बनेगी और फिर आउटपुट जो क्लाइंट के सामने आएगा वो कैसा होगा कि उसमें एक A का आउटपुट और B का आउटपुट, सॉरी मेन का आउटपुट, क्योंकि यहां पे इंटरनली क्या हुआ, दो फाइल बनी, तो इस फाइल का आउटपुट और इस फाइल का आउटपुट दोनों कंबाइन होकर क्लाइंट के सामने आएंगे। क्लाइंट को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ये चीज होगी, दो सर्वलेट बनेगी, ओके, और फिर दोनों अलग अलग रन होगी और दोनों का जो आउटपुट जनरेट होगा वो आउटपुट मिक्स होके क्लाइंट के सामने आएगा। और अगर हम यहाँ पे सोचे कि इफ वी हैव वन मोर JSP that is b.jsp and we are including A and b.jsp in main.jsp, then internally there will be three servlets, a.java, then b.java and finally your main.java। और जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, A का आउटपुट
बी का आउटपुट मतलब ए का आउटपुट जनरेट होगा, बी का आउटपुट जनरेट होगा, मेन का आउटपुट जनरेट होगा, तीनों अलग अलग रन हुए, तीनों के आउटपुट जनरेट हुए और वो तीनों आउटपुट मिक्स करके मतलब कंबाइन करके क्लाइंट को दिखाया जाएगा। अब कौन सा आउटपुट कहां पे कंबाइन होगा, जैसे कि आप सोचोगे कि भाई ये आउटपुट कंबाइन कहां पे होगा, पहले होगा, अंत में होगा, बीच में होगा, डिपेंड्स। आपने कोड में, आपने इस मेन पेज के कोड में ए को जहां पे इंक्लूड किया है ना, वहां पे ए का आउटपुट आएगा। मतलब आपके मेन पेज का कोड सपोज कि 100 लाइंस का है और उसमें 50 नंबर की लाइन में आपने ए को इंक्लूड किया है, 70 नंबर की लाइन में आपने बी को इंक्लूड किया है, तो क्या होगा, जब आउटपुट आएगा तो पहले मेन के 50 लाइन का आउटपुट, फिर ए का आउटपुट, फिर अगेन 61 to 70 लाइन, फिर बी का आउटपुट एंड देन रिमेनिंग लाइंस फ्रॉम main.jsp। मतलब कि यहां पे आउटपुट इंक्लूड होता है। मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, यहां पे आउटपुट इंक्लूड हो रहा है, फाइल सब अलग अलग ही है, फाइल्स कंबाइन नहीं हुई है, उनके आउटपुट्स कंबाइन हुए हैं। ये बेसिक डिफरेंस है जो मैं 3 दिन से आपको बता रहा हूं। देन इंक्लूड डायरेक्टिव्स। अब यहां पे सपोज कि आपके पास ए, बी और main.jsp है और आप इसमें इंक्लूड करते हो a.jspn, b.jsp इन main.jsp। तो इंटरनली क्या होगा पता है, इंटरनली वन सर्वलेट विल बी डिफाइंड, विच सर्वलेट, main.java। आपने 3 जेएसपी पेज बनाए, ए, बी और मेन। अब main.jsp में आपने इंक्लूड डायरेक्टिव के जरिए ए और बी को इंक्लूड किया, तो इंटरनली क्या होगा पता है, ए का कोड और बी का कोड, ए का और बी का कोड दोनों मेन के कोड में जाएंगे, इंटरनली फाइल एक ही बनेगी। देखो यहां पे सबकी अलग अलग फाइल्स बन रही थी, लेकिन यहां पे एक ही फाइल बनेगी और उस एक फाइल में ए का भी कोड होगा, बी का भी कोड होगा और फिर मेन का भी कोड होगा। और जब रन होगा तो ये एक ही फाइल रन होगी और इसका आउटपुट क्लाइंट के सामने जाएगा। अब हम जानते हैं कि उस आउटपुट में तीनों फाइल के कोड रन होके जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो आउटपुट है वहां पे। आया समझ में? सो आउटपुट तो यहां पे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे भी आउटपुट तो तीनों का होगा, लेकिन एक्चुअली वो एक ही फाइल से जनरेट हुआ होगा। ओके, आया समझ में फ्रेंड्स? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस। बाकी भी डिफरेंसेस है, बाकी भी डिफरेंसेस है जो मैंने आपको डिस्कशन के वक्त भी बताए थे और कल भी मैंने गूगल क्लासरूम में आपको शेयर किया है। वो एक डिफरेंस की ऑनलाइन मटेरियल है ना, तो उसमें भी अच्छे डिफरेंस दिए गए हैं, आप उसको रिफर भी करना। ठीक है, हैज एनीबॉडी डाउट नाउ फ्रेंड्स? नो सर। देखो आप लोग ठीक से समझोगे नहीं, अटेंड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ये चीज मैं आपको 3 दिन से समझा